mathematics class is easy to learn. Today our topic is 3D, that means three-dimensional geometry. In this video, we will discuss about these topics. First one is coordinate of a point. Second is distance between 2 points. Third one is section formula. Fourth one is direction cosines. Fifth one is relation between direction cosines. And last is direction ratios. आइए start करते हैं वीडियो. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आप फर्दर वीडियोस देख सकें. वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए. Now let's start. First is coordinate of a point. We know that in three-dimensional geometry we have three axes. We all know about it. This one is x-axis, this one is y-axis, and this one is z-axis. And the point of the coordinate of a point P is denoted by x, y, z. हम सभी जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. This is origin. Its coordinate is 0, 0. Clear? Okay. Now next point is distance between two points we are talking about. तो second point क्या था हमारे पास? Distance between two points. If A is the point x1, y1, z1 and B is the point x2, y2, z2, then their distance between them is denoted by, what is the formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ये हम 2D में पढ़ते थे. अगर हमारे पास दो पॉइंट होते थे x1 y1 z1 y1 तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला इससे निकालते थे कि अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता था प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट आ गया है, दैट वन इज z कोऑर्डिनेट. क्लियर? In this figure we have to find the distance of OP. So what is the distance of OP? Under root x minus 0 whole square, y minus 0 whole square, z minus 0 whole square. So this will be x square plus y square plus z square. Clear? So this is the formula of distance between two points. Okay? Okay. Next, third point was section formula. Section formula, we have two types of section. First one is internal and second one is external. Internal division. Or next second one is external. What it means? Suppose if we have 2 points A and this is B, this is x1, y1, z1 and this is x2, y2, z2. If a point P which divides AB in m ratio n, यानी ये point internally क्या कर रहा है, इसको divide कर रहा है किस ratio में, m ratio n में, then we have to find the coordinate of P, कि इस P के coordinate क्या होंगे. तो इसे हम बोलते हैं internal section formula. The coordinate of P, suppose we consider it x, y, z. So what is the value of x? mx2 plus nx2 divided by m plus n. mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly, y coordinate will be my2 plus ny1 divided by m plus n. And z coordinate is mz2 plus nz1 divided by m plus n. वही सेम कंसेप्ट है जो हम 2D में पढ़ते थे कि mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly for the y, similarly for the z coordinate. Clear? ये तो बात थी कि डिवीजन कैसा हो रहा है, इंटरनल. अगर ये एक्सटर्नल होगा तो क्या हो जाएगा, यानी पॉइंट P क्या करेगा, उसको एक्सटर्नल डिवाइड करेगा. तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें एक चेंज करना है. वो चेंज क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल में ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. यानी कि mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n. y के लिए क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n.
और यहाँ पे z के लिए क्या हो जाएगा, mz2 माइनस nz1 डिवाइड बाय m माइनस n। आई होप आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आ गया है। ओके अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। क्लियर, कि कोई एक लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, सपोज x y z, और ये हमने मान लिया पॉइंट P है, x, y, z। दिस लाइन मेक्स एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, एंगल बीटा विद द y एक्सिस एंड एंगल गामा विद द z एक्सिस। ठीक है, इफ अ लाइन मेक्स alpha angle with the x axis, beta angle with the y axis and gamma angle with the z axis, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of that line। ठीक है, and it is also denoted by L, M, N। यानी कि हम cos alpha को L से रिप्रेजेंट करते हैं, cos beta को M से रिप्रेजेंट करते हैं, cos gamma को N से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, cos alpha, cos beta, cos gamma। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम इसे कैसे फाइंड करें, तो इसको फाइंड करने के लिए सपोज वी जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, दिस इज O, इसे हमने ना क्या नाम दे दिया A। क्लियर, हमें पता है कि ये x है और OP हमने मान लिया, इसकी डिस्टेंस क्या है, ये R है, OP इज द R, हमने जस्ट कंसीडर कर लिया। क्लियर, ओके, तो जहां OP क्या हो जाएगा, अगर हम OP की बात करें तो ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो दिस इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा, यस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि हमें डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, इसमें ध्यान दो, ये क्या है, एंगल अल्फा है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या देता है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन r। तो यहां से मुझे बताओ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू LR, क्योंकि मैंने बताया था cos अल्फा को हम क्या बोलते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या मिला, LR। सिमिलरली मैं बता दूंगी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे ही MR, और z इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, NR। क्लियर, y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू NR। कि कैसे, कि अगर आप यहाँ पे P से यहाँ पे हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये तो हमारे पास क्या होता है y, तो वी कैन फाइंड वेरी इजिली इन दिस फॉर्म y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू NR। अब हमें क्या करना है, इस x y z की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। क्लियर, तो देखो क्या मिलता है, फ्रॉम फर्स्ट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, LR। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर, y की वैल्यू MR है तो ये हो जाएगा M स्क्वायर R स्क्वायर एंड दिस विल बी N स्क्वायर R स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड you will get r square is equals to L square and r square plus m square r square plus n square r square, taking common r square, तो r square is equals to जैसे कॉमन लिया तो L square plus m square plus n square, r square से r square क्या हुआ, कैंसिल, तो you will get the result L square plus m square plus n square is equals to 1। तो this is the relation between direction cosines। इस रिजल्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करते हैं। क्लियर हुआ, ओके।
or we can write cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. I hope all you guys understand कि किसी भी लाइन डायरेक्शन रेशियो कोसाइन को हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एंगल गिवन हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, हमारे पास ये प्रूफ करना नहीं आता, जस्ट हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट. क्लियर? ओके. नाउ next point is direction ratios. Direction ratios of a line. So what is direction ratios of a line? If three numbers which are proportional to the direction cosines, suppose that let three numbers are A, B and C. हमने मान लिया थ्री नंबर्स क्या है A, B, C है. If these numbers are proportional to direction cosines, that means L upon A is equals to M upon B is equals to N upon C. Then A, B, C are called the direction ratios of the line. किसी भी लाइन की क्या हो जाएंगी वो डायरेक्शन रेशियोज होंगी. अब हमें क्या देखना है कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो हाउ कैन वी फाइंड, यानी कि अगर मुझे डायरेक्शन रेशियो पता है कैन वी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन? यस. हाउ? जस्ट कंसीडर इट के. क्लियर? तो यहां से L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A के, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा B के, एंड N इज इक्वल टू C के. क्लियर? यानी जब एक बार इन दोनों कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू N के मिलेगी, एक बार इन दोनों कंपेयर करेंगे तो M की वैल्यू B के आएगी और N की वैल्यू C के आएगी. ठीक है. नाउ वी नो द रिजल्ट. व्हाट इज द रिजल्ट? वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्या होता है? 1 होता है. सो पुट द वैल्यू A स्क्वायर K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस C स्क्वायर K स्क्वायर इज इक्वल टू 1. टेकिंग कॉमन K स्क्वायर, you will get A square plus B square plus C square is equals to 1. That means K square is equals to 1 divided by A square plus B square plus C square. Then K is equals to plus minus 1 upon under root. मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ. K is equals to plus minus 1 upon under root A square plus B square plus C square. यानी K की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो आप मुझे बताइए L क्या मिलेगा. यहाँ पुट करने पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो K की वैल्यू. नाउ यू विल गेट L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. Similarly, you will find M is equals to B upon under root A square plus B square plus C square and N is equals to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square. तो आपको माइंड में क्या चीज रखनी है? केवल ये जो कंसेप्ट है इसे ही अपने माइंड में रखना है कि अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्लियर? और अगर हमें एंगल्स पता है then we can find the direction cosines by using that one, cos alpha, cos beta, cos gamma. I hope आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया है. अब हम कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इन्हें समझेंगे. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस? ठीक है, यानी कि x एक्सिस, z एक्सिस और y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी? तो आप मुझे बताओ x एक्सिस खुद के साथ क्या एंगल बना रहा है? जस्ट मेक इट 0 एंड x एक्सिस मेक्स द एंगल विद द y एक्सिस इज 90 डिग्री एंड z एक्सिस इज 90 डिग्री. यानी कि x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री, क्योंकि x एक्सिस का नायक y और z के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि ऑल थ्री एक्सेस आर परपेंडिकुलर. क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0, cos 90 0. यानी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस इज 1 0 0. सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ y एक्सिस क्या आ जाएगा?
दिस वन इज 0 1 0, क्योंकि y एक्सिस है जो x और z पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. एंड सिमिलरली फॉर द z एक्सिस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस इज 0, 0, 1. क्लियर? तो ये तो हमारे एक्सिस की बात हो गई. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, सपोज हमने मान लिया ये P पॉइंट है, x1, y1, z1, एंड ये Q पॉइंट है, x2, y2, z2. क्लियर? तो हमें इसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी. डायरेक्शन रेशियो हमने मान ली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1. अगर डायरेक्शन रेशियो को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं तो b क्या हो जाएगा, इट विल बी y2 माइनस y1 एंड c इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1. क्लियर? यानी हम डायरेक्शन रेशियो इस फॉर्म में फाइंड करेंगे, और जैसे ही हमें डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा वी कैन फाइंड वेरी इजीली डायरेक्शन कोसाइंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. n is equals to plus minus c upon under root a square plus b square plus c square. If we have given 2 points and they have, then we have to find the direction cosine using this concept. Clear? आइए एक दो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. If a line makes 90 degree, 60 degree, 30 degree angle with the positive direction, with the axis in positive direction, then find the direction cosines. यानी अगर कोई लाइन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बनाती है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. That means we have given alpha is equals to 90 degree and beta is equals to 60 degree and gamma is equals to 30 degree. So what is the cos alpha? This is cos 90. Cos 90 की वैल्यू क्या होती है? We know all about it. 0. And cos beta, that means cos 60 degree. Cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/2. And cos gamma, this is cos 30 degree and the value of cos 30 degree is √3/2. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a line makes equal angle with the x, y, z axis in positive direction, then find direction cosines. तब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन. यानी कि जो हमारे पास लाइन है, अगर वो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल, दैट मीन्स सॉल्यूशन अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा. तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है. तब हमें डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? वी नो द रिजल्ट. व्हाट इज द रिजल्ट? cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Okay, now alpha, beta, gamma all are equal. Then we put here cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equals to 1. We can put it because beta और gamma तीनों alpha के equal है. तो we 3 cos square alpha equals to 1. That means cos square alpha is equals to 1/3 and cos alpha is equals to plus minus 1 upon under root 3. Clear? Similarly, what is cos beta? Cos beta is also plus minus 1 upon root 3 and cos gamma is plus minus 1 upon root 3. तो ये हमारे पास क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर?
अब एक और क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हमारे पास आता है, प्रूफ दैट कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. हाउ कैन वी फाइंड? बाय यूजिंग दैट रिजल्ट जो हम जानते हैं. व्हाट वी नो अबाउट? वी नो अबाउट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. वी नो दैट. अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर टर्म्स में लिख सकते हैं. यस, cos square alpha we can write 1 minus sin square alpha. Cos square beta we can write 1 minus sin square beta. Cos square gamma we can write 1 minus sin square gamma is equals to 1. अब देखिए यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक 1 है तो कैंसिल हो जाएगा. 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2. और माइनस वाली टर्म्स को सबको वहां शिफ्ट कर दो तो यू विल गेट 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. हैंस प्रूव्ड. क्लियर हुआ कि कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम अब क्वेश्चन में अपने रिजल्ट को अप्लाई करेंगे. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. इफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर 2, 3, 4, then we have to find the डायरेक्शन कोसाइंस. यानी अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है देन हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन. जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला L इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 20. दिस वन इज 29. Similarly, n is equals to plus minus 3 divided by under root 29 and this is m. n is equals to plus minus 4 divided by under root 29. Clear? तो हम डायरेक्शन रेशियो पता है तो इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a line passing through 2 points then we have to find a direction cosine. Suppose that point P is just consider it 1 2 1 and Q point is 2 1 3. Okay, now find the direction ratio. Firstly find direction ratio, then we will find the direction cosine. So A is equals to x2 minus x1. So 2 minus 1 is 1. B is equals to y2 minus y1. That means 1 minus 2 is equals to minus 1. C is equals to z2 minus z1. 3 minus 1 is equals to 2. Now you have ABC. Clear? Then you can find element very easily. L is equals to plus minus A divided by under root A square plus B square plus C square. The value of A is 1. So we can put here 1 divided by अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. यू विल फाइंड 1 डिवाइडेड बाय 4 5 6 अंडर रूट 6. यहाँ पे एक ऐसा है पॉजिटिव तो वी विल कंसीडर इट पॉजिटिव. नाउ m इज इक्वल्स टू b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है तो वी विल कंसीडर इट नेगेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6 एंड n इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6. क्लियर? प्लस माइनस कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे इट में बी प्लस इट में बी माइनस. समझ में आया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द प्लेन. क्लियर? तो 3 डायमेंशन में हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर इट. टिल देन, गुड बाय.